السلام علیکم، میں امداد صبح سب کی نکل پڑی، سب کی چل پڑی اور عمران خان صاحب کی نکل گئی۔ وقت خان صاحب کے ہاتھ سے نکل چکا ہوا ہے، اب ہاتھ مل رہے ہیں۔ الیکشن کا ماحول بن چکا ہوا ہے اور انتخابات اب زیادہ دور نہیں ہیں۔ ایک طرف انتخابات کے لیے بلاول بھٹو زرداری نے رابطہ عوام مہم چلانے کا اعلان کر دیا ہے، دوسری طرف نواز شریف صاحب انتخابات میں حصہ لینے کے لیے پاکستان پہنچ رہے ہیں، اور تیسری طرف آئی پی پی نے یعنی جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی نے جلسے کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اگر کوئی اس سارے کھیل سے باہر ہے تو وہ عمران خان جو کل تک اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے۔ اس لیے میں نے کہا کہ سب کی نکل پڑی، عمران خان صاحب کی نکل گئی۔ ان تمام معاملات پر بات کرنے سے پہلے جو صورتحال ہے جو بننے جا رہی ہے، جس کے امکانات ہیں اور واضح امکانات ہیں، اس پر بات کرنے سے پہلے گزارش اپنے دیکھنے والوں سے، ان دیکھنے والوں سے جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیوز، ویلاگز، تبصرے، تجزیے پسند آئیں تو کمنٹ بھی کریں، شیئر بھی کریں اور لائک ضرور کریں۔ تو جناب، کل جلسہ تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، بلکہ جلسے تھے۔ 18 اکتوبر محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی آمد تھی۔ مشرف فرعون بنے ہوئے تھے پاکستان میں 2007 میں، اور انہوں نے بینظیر بھٹو کو دھمکی دی تھی اور دھمکی پر عمل کر کے دکھایا تھا، مگر وہ دلیر عورت تھی۔ انہوں نے مشرف کی دھمکی اور دھمکی پر عمل کرنے کے باوجود مشرف کو للکارے رکھا، جلسوں کا شیڈول کینسل نہیں کیا، عوام میں جانے سے نہیں رکی، اور بالآخر 27 دسمبر کو مشرف نے ان کو شہید کر دیا، مگر وہ راستہ جو روکنا چاہ رہے تھے وہ نہیں روک سکے تھے، اور پھر خود چلے گئے، اور پھر ایسے جلاوطن ہوئے کہ اس کے بعد وہ زندہ پاکستان واپس نہیں آئے۔ تو ثانیہ کارساز کی برسی تھی، بلاول بھٹو زرداری نے خطاب کیا تھا اپنے گھر کے سامنے بلاول چورنگی پر، اور اس کے بعد پھر ملک بھر میں چھوٹے چھوٹے جلسے ہوئے تھے، کہیں بڑے کہیں چھوٹے۔ لاہور میں بھی تھا، لاڑکانہ میں بھی تھا، چنیوٹ میں بھی تھا، اکھاڑا میں بھی تھا، ساہیوال میں بھی تھا۔ وہاں پر اسکرینیں لگائی گئی تھیں، بلاول بھٹو نے وہاں پر خطاب کیا تھا۔ نون لیگ عدالت میں آج فیصلہ ہوگا نواز شریف صاحب کی حفاظتی ضمانت کا، اور ظاہر ہے وہ جو عدالت کا موڈ تھا، یا پھر جو مدعی فریادی نیب جو ان کی وہاں پر جو تھی اپنا موقف تھا وہاں پر، تو اس کے بعد یہ کوئی ابہام نہیں رہتا کہ نواز شریف صاحب کو حفاظتی ضمانت نہیں ملے گی، ملنی بھی چاہیے۔ ایک سیاستدان ہے، ان کو آئین اور قانون کو توڑ کر ایک سازش کے ذریعے، ایک عدالتی فیصلے کے ذریعے ان کو باہر نکالا گیا تھا۔ ایک نہیں کہ عدالتی فیصلے، پورا ایک جکڑ بند تھا۔ وہ واپس ہو رہے ہیں نواز شریف صاحب سیاست میں، ان کی انٹری ہو رہی ہے، سب کی چل پڑی ہے نا، عمران خان کی نکل گئی ہوئی ہے۔ تو نکل گئی ہے سیاست ان کے ہاتھ سے، ریت کی طرح خان صاحب کے ہاتھ سے۔ تو اب عمران خان صاحب کیا کر رہے ہیں؟ وہ اب بہت ہی، میں اسی انسان کو کیا ہوتا ہے، وہ تضحیق کے لیے میں الفاظ استعمال نہیں کرتا، پولیٹیکل قد کاٹ کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں۔ ایک سیاسی کارکن کی اہمیت، حیثیت اتنی ہوتی ہے جتنی کسی سیاسی لیڈر کی ہوتی ہے، لیکن جب ایک ذمہ داری ہوتی ہے تو وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ تو جو تحریک انصاف کے ذمہ دار نہیں ہیں، وہ یا جن کی پی ٹی آئی میں حیثیت چوتھے، پانچویں، چھٹے درجے پر تھی، وہ لوگ اب عمران خان صاحب کے لیے، عمران خان صاحب کے کہنے پر تگودو کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح سانو معافی دے دیو بھائی، سانو نال بٹھا دیو۔ جب ساتھ بیٹھنے کی باتیں ہو رہی ہوتی تھیں تب عمران خان صاحب کیا کہتے تھے کہ این آر او مانگ رہے ہیں۔ جب ان کو کہا جاتا تھا کہ بھائی یہ نیب کے قوانین کالے قوانین ہیں، ان قوانین کو ختم کرو، باقی لیجسلیشن جو ہوگی بیٹھ کر لیتے ہیں، تو جلسے میں آ کے کہتے تھے، تضحیق آمیز مزاحیہ انداز میں مسخرے بنے ہوتے تھے، جیسے سیاست ان کے لیے مشکری ہو۔ مشکری ہم سندھی میں مذاق کو کہتے ہیں، پنجابی میں مشکری کہتے ہیں۔ تو جیسے سیاست ان کے لیے کوئی کھیل ہو، کرکٹ کا 11 لوگ ہاریں گے، 11 لوگ جیتیں گے، ایسا نہیں تھا۔ سیاست، حکومت، ملک کے مستقبل کا فیصلے وہاں پر ہوتے ہیں، قوموں کے مستقبل کے۔ انہوں نے مذاق بنایا ہوا تھا، او میں نہیں چھڑاں گا، مولا جٹ بنا ایسے بھی۔ تو وہ، یا مجھے کسی نے کہا کہ سلطان راہی مولا جٹ نہ کہ وہ تو ہیرو ہیں، تو نوری رت کہتے ہیں، نوری رت بنے ہوئے تھے، اے شادی نہیں ہو سکتی، تو یہ والا کر رہے ہوتے تھے۔ اب کیا ہے؟ اب جیل کے اندر سے ان لوگوں کی، جن لوگوں کی بات
جو पंजाबी च कहते हैं ना, मतलब मैं तस्दीक नहीं कर रहा किसी की, माजरत के नाल पोलिटिकली गल कर रहा कि ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਘਰ ਦੂਜੇ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਸਾਲਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ इमरान खान वास्ते लॉबिंग कर रहे हैं भाई कि जी खान साहब को साथ बिठा दें, सियासी कुव्वतें जो है वो एक साथ बैठ जाएं। यही तो मुद्दा था। आजकल फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि एक और मिसाक जमहूरियत की ज़रूरत है। फवाद चौधरी साहब का लाख एहतराम, लेकिन फवाद चौधरी साहब जैसे लोगों ने इमरान खान साहब को यहाँ पहुँचाया है। मिसाक जमहूरियत के मजाक उड़ाया करते थे, खुद साइड पर हो गए। इमरान खान साहब जेल में खुद चुप करके बैठ गए, सियासत तर करके बैठ गए। इमरान खान साहब के हाथ से निकल गई सियासत, वक्त निकल गया। इलेक्शन होने जा रहे हैं, अगर इलेक्शन हो जाते और इंतखाबात में कभी इम्कान है कि नून लीग की हुकूमत बन जाएगी, नवाज शरीफ साहब बहुत बड़े बंदोबस्त के साथ आ रहे हैं, तो नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन जाएंगे, तो फिर अगले इंतखाबात 28 में होंगे। तो 28 तब तक इमरान खान साहब के अंदर इतना सब्र तामुल है कि वो 5 साल सुकून के साथ जेल काटे और अपने वक्त आने का इंतजार करें। ये जिगरा सिर्फ और सिर्फ एक शख्स का था जिसका नाम आसिफ जरदारी है। 11 साल जेल काटी, अपने वक्त आने का इंतजार किया और फिर वक्त आया उनका। बार बार जेल गए, बार बार अपने वक्त आने का इंतजार किया। इमरान खान साहब हुकूमत गई तो फौजी छावनियों पर हमले करवाना शुरू कर दिए, कोर कमांडर हाउस पर हमले करवाना शुरू कर दिए। अब जब उनको लोग कहते थे कि खान साहब बैठ जाएं, मुज़ाकरात के लिए बैठ जाएं, बिलावल भुट्टो ने कहा पार्लियामेंट में खड़े होकर के कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं, तो कहा गया कि ये एनआरओ मांग रहे हैं, ये मुकमुका चाहते हैं, इन चोरों के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। शहबाज शरीफ साहब ने अपोजिशन लीडर बनते ही कहा कि अब हम सारे इख्तलाफात भुला देते हैं, आपने जो किया आपको माफ़। हम ये कह रहे हैं कि जी हाँ मीसा के मुइशत करते हैं। मजाक उड़ाया गया कि जी अपने मुकदमात से डर रहे, हमने तो तुम लोगों को जेलों में डालना है, हमने तुम लोगों को ख़त्म करना है। वही शहबाज शरीफ अपने कद काट के साथ खड़े हुए हैं, वही नवाज शरीफ साहब अपने कद काट के साथ वापस आ रहे हैं, वही बिलावल भुट्टो जरदारी वो अपनी पार्टी को मज़ीद जो है वो मजबूत करने के लिए वो पंजाब में तेज़ी के साथ मुतहरिक हो रहे हैं। इमरान खान साहब जेल की 30 बाय 62 या 60 फुट की खोली में बंद होकर रह गए, कोई हाथ मिलाने वाला नहीं है। नवाज शरीफ साहब बात सुनना नहीं चाहते कि इमरान खान के साथ वो जब से ये शुरू हुआ है ना कि सियासी कुव्वतें आपस में बैठ जाएं, मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा मैं नहीं बैठूंगा इसके साथ। बिलावल भुट्टो जरदारी से कई बार सवाल हुआ कि जी इमरान खान भी सियासतदान हैं, आप इनके साथ बैठे, इलेक्शन वो भी चाहते हैं, आप भी इलेक्शन चाहते हैं, इनके साथ बैठना पसंद करेंगे या वो अगर आपकी तरफ हाथ बढ़ाएं? तो बिलावल भुट्टो जरदारी क्या कहते हैं कि जो 9 मई में मुलविस हैं उनके अलावा पीटीआई के साथ हम बैठ सकते हैं, कोई हाथ, क्योंकि 9 मई के मास्टरमाइंड इमरान खान है। जेआईटी की रिपोर्ट अपनी जगह, हम बहुत पहले से वाकयाती शहादतों के साथ बात ये करते रहे कि इमरान खान ये करने जा रहे हैं। मेरे व्लॉग, एक एक व्लॉग में मैंने चीख कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या लोअर जुडिशरी वो इमरान खान साहब को रिलीफ दे रहे हैं और इमरान खान साहब उसका गलत इस्तेमाल करके अपने आप को जाल में फंसाता जा रहा है। यही हुआ और मैंने कई बार ये व्लॉग किए हैं कि इमरान खान जिस इस वक्त अजियत, जिस तकलीफ या जिस मुसीबत में है, उसके ज़िम्मेदार उमर अता बंदयाल एंड कंपनी है। वो जजेस हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को एहसास दिलाया अपने हथौड़े की ताकत के ज़रिए कि तुम नाकाबिल तस्खीर हो। हालांकि इमरान खान साहब की बैसाखियाँ हटा दी जाती तो इमरान खान साहब के लिए कोई छोटे से छोटी पॉलिटिकल पार्टी भी बड़ी थी, नून लीग और पीपल्स पार्टी तो बहुत बड़ी पार्टियाँ हैं, लेकिन रियासती ताकत के साथ इमरान खान साहब को हवा बनाया गया था। आज वो इमरान खान साहब, रऊफ़ हसन साहब जो हैं पीटीआई के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, और कोई उमेर न्याजी साहब हैं, उनके ज़रिए सदर साहब के पास जाते हैं कि जी खुदा के वास्ते पॉलिटिकल पार्टीज़ को साथ बिठा ले, मेरे कोई मेरे लिए रास्ता निकाले। एक गलत फहमी इमरान खान साहब को थी, वो ये थी कि जी मैं ज़्यादा देर जेल नहीं रहूँगा। यही गलत फहमी इमरान खान साहब ने अपने लोगों तक ट्रांसफ़र की हुई थी, मुंतकिल की हुई थी कि मुझे ज़्यादा देर जेल नहीं रख सकते, मैं आऊँगा वापस। इसी गलत फहमी की बुनियाद पर जेआईटी वालों को इमरान खान ने यूँ कहा, तुम लोग सुन लो, तो मुझसे यहाँ मुझे इमरान खान को बिठाया तुम लोगों ने, जो किला गुजर सिंह की जेआईटी थी, तुम लोगों ने मुझे यहाँ बिठाया है, मैं वापस आ रहा हूँ, जहन में रखना, तुम लोगों को देख के रहूँगा। और फिर उसी जेआईटी ने उसको मास्टरमाइंड इमरान खान साहब को डिक्लेयर किया।
जेल में, और JIT वाले उसी तरह काम कर रहे हैं। उसी JIT की रिपोर्टों की बुनियाद पर इमरान खान साहब को जाकर गिरफ्तार भी किया गया। बहुत सी चीज़ें, और गिरफ्तार कैसे किया गया था? दरवाजे फलांग कर। तो खान साहब के हाथ से वक्त निकल गया है, अब इंतखाबात की तैयारियां हैं। नवाज शरीफ साहब की आमद का मतलब है कि इंतखाबात होने जा रहे हैं। अदालत में नैब का जो कल अंदाज था, तर्ज अमल था, वो ये बता रहा था कि नवाज शरीफ साहब को बरी होने में कोई बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी। हिफाजती ज़मानत तो दूर की बात है, वो तो यूँ मिल जाएगी। बरी होने में भी मियाँ साहब को कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। 30 नवंबर को इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात का शेड्यूल देना है, तारीख देनी है। और मेरा जो हिसाब किताब था कि अगर मामला जो अपीलों के वो बहुत तेज़ी के साथ भी चले तो भी नवाज शरीफ साहब जनवरी के इंतखाबात बीट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब जो नैब कह रहा है तो मुमकिन है कि एक आध पेशी में, यानी मिड ऑफ नवंबर में नवाज शरीफ साहब जो है वो बरी हो जाए, या 20-25 नवंबर तक नवाज शरीफ साहब बरी हो जाए। तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन 30 नवंबर को डेट दे देगा। और अगर मामला एक आध हफ्ता आगे चला गया तो इलेक्शन कमीशन जनवरी के आखिरी हफ्ते के बजाय फरवरी के पहले हफ्ते में इलेक्शन की डेट अनाउंस कर देगा। मुतालबा यही है ना कि तारीख दें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो अपना कराची में खिताब किया वीडियो लिंक के ज़रिए, फिर पूरे मुल्क में वो नशर हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि मैं इलेक्शन की तारीख देने के लिए राब्ता अवाम मुहिम चलाने जा रहा हूँ। बेसिकली वो राब्ता अवाम मुहिम इलेक्शन की तैयारियों की होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जी सिलेक्शन नहीं, इलेक्शन के ज़रिए लीडरशिप आनी चाहिए। फिर उन्होंने नवाज शरीफ को भी तनकीद का निशाना बनाया है। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि हम आपस में ना लड़ें, और हमें अगर आपस में लड़ते रहेंगे तो फ़ायदा कोई और उठाएगा, एक दूसरे को गालम गलोच ना करें। लड़ाई का मतलब क्या है? लड़ाई का मतलब ये है कि एक इक़्तिदार में या दूसरा जेल में हो, ये ना करें। तो एक तरह से वो मियाँ नवाज शरीफ साहब से ये भी डिमांड कर रहे हैं कि इमरान खान के हौला हाथ रखो भाई, इंज ना करो, तो इसका नाजायज़ फ़ायदा कोई और कुव्वत उठाएगी। लेकिन मियाँ साहब ने कहा नहीं। और मियाँ साहब क्यों माफ़ करेंगे? उनकी बेटी को उन्होंने हथकड़ियाँ लगाई हुई हैं भाई उनके सामने से। उनकी अहलिया वो बिस्तर मर्ग पर छोड़कर पाकिस्तान आए थे और उनकी बात नहीं करवाने दी जाती थी जेल में। नवाज शरीफ साहब माफ़ नहीं करेंगे। तो इलेक्शन का माहौल बन रहा है। इलेक्शन के माहौल में पीपल्स पार्टी पूरी जोर शोर के साथ कूद पड़ी हुई है। नून लीग परसों तरसों के बाद 21 के बाद नून लीग इलेक्शन में कूद पड़ेगी। नवाज शरीफ का जलसा होगा और उसके बाद वो वहाँ से ऐलान करेंगे कि क्या क्या करना है। तो फिर वो नून लीग जिसके ऊपर मैंने कल एक व्लॉग किया था कि वो बिल्कुल डरी सहमी हुई है या उसके झंडे नहीं है, आपको नज़र आ जाएगा, वो खुद ब खुद एक्टिव हो जाएगी। इंतज़ार नून लीग वालों को ये है कि यार देखो मियाँ साहब को जेल तो नहीं भेज देते, जेल भेज दे फिर सारा खर्चा करे, वो खर्चा ज़ाया हो जाए। हिसाब किताब भी तो कोई चीज़ होती है ना, तो ये शायद इंतज़ार हो उनको। लेकिन जैसे ही नवाज शरीफ साहब आएंगे तो पूछेंगे वो फ़िलहाल खान साहब आपके पास तो उखाड़ा है ना, हाफिज़ाबाद वाले आप तो आओ ना, आपने क्या किया है, टिकट चाहिए ना, तो फिर जाके काम करो। तो फिर सूरत हाल बहुत डिफरेंट हो जाएगी। वो तैयारियां कर रहे हैं। अभी ये मेरे हाथ में ख़बर है अपना IPP अभी कल ये पॉलिटिकल पार्टी बनी है और अभी इन्फॉर्मेशन तो बहुत सी और भी है कि जी वो कोई एलिमीन गंडापुर के मुतालिक कहा जा रहा है कि वो भी किसी वक्त नमूदार होकर IPP में चले जाएंगे। मुराद सईद की गिरफ्तारी की अफवाहें हैं, हो सकता है मेरा व्लॉग आने तक ये अफवाह सच सब में बदल गई हो या कोई तरदीद आ जाए। लेकिन बहरहाल अभी IPP जो है इन्होंने पंजाब भर के 9 अजला में जलसे और कन्वेंशन का फैसला कर लिया है। 28 अक्टूबर को खानेवाल से आगाज़ करने जा रहे हैं। इलेक्शन कैंपेन है ये पूरी। 3 नवंबर हाफिज़ाबाद, 9 नवंबर नारोवाल, 12 नवंबर लिया और 17 नवंबर को कसूर, 20 नवंबर को गुजरांवाला, 24 नवंबर को झंग, 2 सितंबर को साहिवाल, 9 सितंबर को फैसलाबाद। ये सारा कुछ करेंगे। उसके अलावा रावलपिंडी, शेखुपुरा, बावलपुर और दीगर अजला में भी कन्वेंशन होंगे। तो ये प्रॉपर उन्होंने एक्टिविटीज़ कर ली हैं तेज़। और इमरान खान साहब अब रास्ता मांग रहे हैं। किन से? जिनको जेलों में बंद करवा रहे थे। किन से? जिनके बच्चे रुलाने की बातें करते थे। इनके बच्चों से कोई शादियां नहीं करेगा, इनके बच्चों को कोई स्कूल में नहीं दाखिल होने देगा, जिनके घरों पर पथराव करने का लोगों को उकसाते थे, जिनके रास्ते रोकने के लिए उकसा रहे होते थे, उनके जिनको चोर कहते थे, सारा टाइम कौमी असेंबली में वो मुराद सईद को खड़ा करके कहते थे चोर 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 करते रहे। वो चीखती चिंगारती
تقریریں کر کے چور چور کا شور مچا رہے ہوتے تھے. اب ان کے ساتھ مفاہمت کی باتیں کر رہے ہیں. یعنی عمران خان صاحب بیسیکلی معافی مانگ رہے ہیں. کس سے؟ آصف زرداری سے اور نواز شریف سے. آصف زرداری شاید اپنے بیٹے کے پریشر میں آ کے معاف کر لیں پولیٹیکل پروسیس کی خاطر یا کسی اور وجہ سے. نواز شریف صاحب معاف نہیں کریں گے. اس لیے میں نے کہا سب کی نکل پڑی ہے، سب الیکشن کے لیے چل پڑے ہوئے اور عمران خان کے ہاتھ سے وقت نکل گیا ریت کی طرح. تو عمران خان صاحب کی نکل گئی سیاست. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.